एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24 और डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। जनरली कोई भी डेटाबेस बाहर से बहुत ही सिंपल और इजी शो होता है, बट एक्चुअल में इंटरनली उसके अरेंजमेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। सो किसी भी डेटाबेस में डेटा लॉजिकली कैसे स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज और मेंटेन होता है, प्लस उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब डिसाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ डेटा मॉडल। सो वी कैन से दैट डेटा मॉडल्स इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ डेटाबेस एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब डेटा रिलेशनशिप means like one to one, one to many, many to many or many to many relationship, and the third one is the consistency constraint. So ये तीनों को ये follow करता है. So the main purpose of data models are simplicity, reduce the redundancy, minimize the cost, reduce the inconsistency, faster performance, and improve or increase the efficiency and effectiveness. Now there are mainly 5 types of data models: hierarchical data model, network model, relational model, object oriented model, and ER model. So let's see one by one. So the first one is hierarchical data model. The name implies that hierarchy means parent-child relationship, or parent-child relationship means each entity can have exactly one parent and multiple child. So here this is the parent and these are the multiple child. So this is the one to many relationship. Or hierarchical data model is like a downward tree structure. So data is organized in the form of downward tree structure, or like the tree. In this hierarchical model, the top of the hierarchy is called root. So in a single tree, एक सिंगल एंटिटी, एग्जैक्टली वन एंटिटी इज कॉल्ड रूट और अदर एंटिटीज आर पेरेंट एंड चाइल्ड। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। सपोज एक डिपार्टमेंट है टीचिंग डिपार्टमेंट, देन सेकेंड डिपार्टमेंट इज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, देन थर्ड डिपार्टमेंट इज एडमिन department. So in this case, organization is the parent and teaching, management and admin departments are the child. Now again, teaching department have many students and many teachers. So in this case, now teaching department is the parent and student and teachers are the child. So this is the hierarchical model. Now hierarchical model has so many advantages as well as the disadvantages. So the first advantage is it is very simple and easy to understand because इसमें हम use कर रहे हैं one to many relationship, or we can say that parent child relationship. Then second advantages is it only follows one to many relationship, so it is very simple concept. Now the third advantage is it promote data sharing, and the fourth advantage is it supports or it provides data security. Now the disadvantages is, the first disadvantage is it is not used for complex implementation, and जब ये complex implementation के लिए use होगा then we need physical स्टोरेज का हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। सो कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ द सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, बिकॉज जब भी इसके स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम को चेंज करना होगा। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज it does not follow DDL and DML languages. So these are the advantages and disadvantages of हायरार्किकल मॉडल। सो इन हायरार्किकल मॉडल डेटा जो है आपका रिकॉर्ड फॉर्म में स्टोर होगा और डाउनवर्ड ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। नाउ द सेकेंड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल। It is the extension or improvement of hierarchical data model, and the data is organized in the form of graph. So one to many relationship के साथ में many to one और many to many relationship भी possible होगी नेटवर्क डेटा मॉडल में। For example,
parent and child, C1, C2, C3 and C4. So parent 1, P2 and P3. Now the cross communication is also possible. Graph means each or some entities can connect with other entities also, and in this some entities can access the data from the various path or multiple paths. So it is possible in the network data model, but it's very complicated क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कम्युनिकेशन है और it follows so many parent child relationship. Now नेटवर्क डेटा मॉडल को एक हम सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज एक राइटर है, राइटर कैन राइट मेनी बुक्स. सो बुक 1, देन बुक 2, then book 3. Now it is again possible that book 1 is written by many writers. So this is the example of network model. So in this we are following graph structure. Now the advantages of network model is, first is it is very simple and easy to understand. Then second is the accessing the data is very easy because in this we are using multiple relationship. Then the third advantage is in this we are using DDL and DML languages. Now the disadvantages of network model is, the first one is it is not flexible. Again इसमें हम यदि स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम को चेंज करना होगा. देन द सेकेंड वन इज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसमें हम जब इसे हम मेंटेन करेंगे तो उसमें हमें पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगेन पॉइंटर इज वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. नाउ द थर्ड वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल. प्रीवियस दोनों मॉडल्स फ्लेक्सिबल नहीं थे, तो इस कमी को ओवरकम करने के लिए रिलेशनल डेटा मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ. सो इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, एंड रिलेशन मीन्स टेबल, एंड वी नो दैट एवरी टेबल हैव कॉलम्स एंड रोज. सो डीबीएमएस की लैंग्वेज में टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन, और हर रो को हम इसमें बोलेंगे टपल, एंड हर कॉलम को हम इसमें कहेंगे एट्रीब्यूट. और रिलेशनल डेटा मॉडल सेट थ्योरी को फॉलो करता है, और इसमें जो डेटा आपका स्टोर होगा वो भी आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होगा, और वी कैन एक्सेस द डेटा वेरी इजीली एंड क्विकली. Now in relational data model the advantage is, first is it is very flexible and natural क्योंकि इसमें चेंजेस करना बहुत इजी होता है. देन सेकेंड इज इट सपोर्ट ऑल द रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to many and many to one relationship. Then the third one is it provide data security, and fourth one is it also supports DDL and DML languages. Now the disadvantage of relational data model is, the first one is it requires powerful hardware, software and storage devices for storing the data, manage the data and accessing the data. Then the second disadvantage of relational data model is that it is very simple concept, so इसका misuse भी हो सकता है, और इससे इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी इंक्रीज हो सकती है. बट रिलेशनल डेटा मॉडल में हम टेबुलर फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए इट इज वाइडली यूज्ड. मीन्स जनरली हम रिलेशनल डेटा मॉडल ही यूज होता है, और प्रीवियस दो मॉडल हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल ऑब्सोलीट हो चुके हैं. सो दिस इज द रिलेशनल मॉडल. नाउ द फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. प्रीवियस सभी मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए सुटेबल नहीं थे, प्लस प्रीवियस मॉडल्स आर यूज्ड ओनली फॉर द स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और ग्राफिक्स के लिए हमारे पास कोई डेटा मॉडल नहीं था. इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया. सो द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किए रखते हैं, और इस डेटा मॉडल में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, और इसमें स्पेसिफिकली लाइक XML का यूज होता है.
देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है. सो द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज फर्स्ट इज it is based on real world entity, then second is better performance, then the third one is it support OOPS principle, and the fourth one is it also support DML and DDL language, and it can use for structured, semi-structured and unstructured. Now the disadvantage of object oriented data model is it is very complex, then it needs ट्रेनिंग फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि इसे सीखने के लिए हमें स्टार्टिंग में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी. देन द थर्ड वन इज इट नीड्स और रिक्वायर पावरफुल सिस्टम एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसे मेंटेन करने के लिए हमें और इसे मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का नोन होना रिक्वायर्ड होता है. So this is the object oriented data model. Now the last one is the ER model. Here ER means entity and R means relationship. So in the ER model is a graphical approach in which data and relationship is presented via the visual representation and ग्राफिकल और डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. इसे हम सिंपल एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. लाइक कोई इंजीनियर हाउस क्रिएट करने से पहले उसका मैप या फिर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करता है जिससे कि हाउस अच्छे से क्रिएट हो विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी. सो सेम इसी तरह से ER डेटा मॉडल भी वर्क करता है. किसी भी डेटाबेस को इम्प्रूव करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले ER डायग्राम्स बनाते हैं और ER डेटा मॉडल्स को यूज करते हैं. सो ER डेटा मॉडल में ER शो करता है किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को शो करता है, और ER डेटा मॉडल इज वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो ER मॉडल आप खुद में ही एक बहुत वाइड टॉपिक है, इसलिए इसे हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे. सो द कंक्लूजन इज data model is a way of organizing the data into the database, and it have 5 types of data models: hierarchical, network, relational, object oriented in ER model. First two are obsolete, then third one relational data model is widely used because we are using tabular structure, then last two are used for the real world entity also and for unstructured data also. And ER data model is a visual representation, means इसमें हम डायग्राम बना के फिर डेटाबेस को इम्प्रूव किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा मॉडल्स. थैंक यू.